Okay, so we had started the unit chapter 4, that is inoccupation. Yesterday I had given you an idea of what is inoccupation or unemployment, and what is its meaning, what is income, what is occupation, and what why we are studying this, what is the importance of studying about unemployment or inoccupation. So yesterday we studied that there are two main points to understand inoccupation or unemployment. One is lack of work, another is to be available for work. I had explained you that lack of work means there is no work available to be done. People are available, people are willing to work. They have the skills, they have the will to work, but there is no work. So that is one type of situation which is causing unemployment. In the villages, the people want to work, they have the necessary skills to work, but there is no work, so they are unemployed. That is one type of unemployment. Another type of unemployment is that the work is available, there is work to be done, there are people also ready to work, the people have the necessary skills, but the work is not to their choice. The type of work that the people want is not available. Some other type of work is available. So the people, they are not taking up the work against their choice. So in this case, we can see that the work is available. It's not that there is no work. The work is available. The people are also available. They have the skills and desire also to work. But since the work is not according to their choice, they are not ready to work. They want the work of their choice. So that case also, it is causing unemployment. The work is not being done, or people are not having any occupation. सो हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो है कई तरह से होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि खाली काम नहीं है या वहाँ लोग नहीं हैं लायक. आप देखिए, टुडे देर आर सो मेनी ग्रेजुएट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, graduates of engineering stream, graduates of medical stream, so many types of graduate people are there because there are so many colleges. So there are so many types of graduates available in the market: engineering graduates, medical graduates, law graduates, management graduates, arts graduates, so many type of people.
and they are many of them are having the skills also, not all of them, but many of them are having the skills also. Work is also available, work to be done is also available, but the work that these graduates want, that is not that type of work is available, but some other type is available, and that they don't want. So they are not ready to take up those work because it is not according to their desires. So they are remaining unemployed. They are remaining unemployed. It's not that there is no work, there is no work available for them, but the work that is available is not according to their liking or their choice. So they are not taking up the work. Just 1 minute. Just 1 minute. Okay. So the situation is that there are many types of works available, there are many types of people also available to do the work, qualified to do the work, but still there is unemployment. Why? Because the work is not to the liking of the people. Now we will take up an example to understand this. Sita Devi, mother of Akash, helped her husband Kishan in his house hold work. ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है कि आकाश कोई एक पर्सन है जिसकी मदर है सीता देवी, और वो अपने हस्बैंड किशन का उनके घरेलू कामकाज में मदद करती है, चाइल्ड केयर बच्चों की देखरेख मदद करती है, एंड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज और खेत के कामकाज में मदद करती है। समझ रहे हैं? एक पर्सन है किशन जिसकी वाइफ है सीता देवी और इनका सन है आकाश। तो सीता देवी जो है अपने हस्बैंड के लिए घरेलू काम करती हैं, बच्चे की देखभाल करती है और खेतों में भी कामकाज में मदद करती है हस्बैंड की। Akash's brother Jitu and sister Situ spent their time in playing and wandering.
आकाश का भाई है एक जीतू और बहन है सीतू। ये दोनों अपना खेलने में, इधर उधर घूमने में अपना समय गुजारते हैं। कैन यू कॉल सीता देवी, जीतू एंड सीतू अनएम्प्लॉयड? तो यहां क्या हम सीता देवी को, जीतू को और सीतू को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? इफ यस, व्हाई? अगर हां तो क्यों? बताइए, क्या लग रहा है आपको? हाँ अभिषेक बताइए। हाँ बोलिए। हैं? कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड, सीता देवी को कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड? हेलो, यस सर। सीता देवी को अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? सर नो सर। नहीं कह सकते हैं। नो। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते हैं? इंटरेस्ट नहीं कर रही है लगाने के लिए। हैं? हाँ बोलिए। बाहर जाके काम करना ही नहीं चाह रही है जानबूझ के। अरे देखिए देखिए देखिए, बाहर जाके नहीं है तो घर में अपने काम तो करना रही है जी। तो उससे क्या होगा सर? उससे क्या होगा? अरे काम तो कर रही। आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपको मैंने समझाया कि ऑक्यूपेशन किसको कहते हैं, रोजगार किसको कहते हैं। तो जैसे सीता देवी है तो वो काम तो कर रही है अपने घर में, अपना घरेलू काम कर रही है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, और खेतों में भी जाके हस्बैंड की मदद कर रही है। और क्या करेगी? तो क्या उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे? हम्म? नो, अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड है। देखिए समझिए इस बात को क्या है। मैंने आपको, देखिए कल आप फिर ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, देखिए कल आपको मैंने पढ़ाया, बताया, समझाया अच्छे से कि किसी आदमी को ऑक्यूपाइड या रोजगार में लगा हुआ तब कहेंगे जब वो जो काम कर रहा है उस काम को करने के बदले में उसे कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं जिनसे वो अपने जीवन का गुजारा करता है, कर सकता है, करता है। रिसोर्सेज कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है, लेकिन उसे रिसोर्सेज कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन का मैंने आपको कल डेफिनेशन, देखिए आपको फर्स्ट नोट्स के फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट लाइन ही यही है। देखिए आपका चैप्टर का फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन ही सारी बात कह रहा है कि ऑक्यूपेशन इज सच एन एक्टिविटी थ्रू विच अ पर्सन एक्वायर्स रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड, and resource might be in the form of cash or kind, and this acquired resource is called income। ठीक है, पहला लाइन ही देखिए आपको स्पष्ट इस चैप्टर का बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको कोई तरह का रिसोर्स मिलता है जिससे कि वो अपना गुजारा करता है, और वो रिसोर्स चाहे तो कैश के रूप में नगद हो सकता है या काइंड के रूप में हो सकता है, सामान के रूप में हो सकता है, और जो भी उसे मिलता है ऐसे काम के द्वारा, कैश या काइंड, उसी को हम उसका इनकम कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर पाता है उसको हम अनऑक्यूपाइड या अनएम्प्लॉयड कहते हैं। यही दो सेंटेंस में तो आपका पूरा डेफिनेशन है। तो यहाँ अब सीता देवी को हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सीता देवी घरेलू काम कर रही है, घरेलू काम कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है,
और खेतों में भी जाके अपने पति की मदद कर रही है, तो वो कोई काम तो कर रही है। मैंने तो कल आपको इतना समझाया था डिस्कस करके। यस अभिषेक। यस सर, समझ। तो देखिए वो काम कर रही है, लेकिन क्या उसे कुछ उसके बदले में रिसोर्स मिल रहा है क्या? क्या उसे काम के बदले में कुछ मिल रहा है कि अच्छा भाई आप बच्चा संभाल रही हैं तो उसके बदले में आपको ये दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, या इतना अनाज दे रहे हैं, या कोई चीज़ दे रहे हैं। आप जो है घरेलू कामकाज कर रही हैं तो उसके बदले में इतना कुछ आपको ये दे रहे हैं। आप खेतों में जाके काम कर रही हैं तो आपको इतना कुछ, ऐसा कुछ उसे दिया जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा है। तो चूंकि उसे कोई उसके बदले में रिसोर्स एक तरह से नहीं दिया जा रहा है काम के बदले, इसलिए उसे कहेंगे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। काम वो कर रही है लेकिन उसके बदले, और ऐसा नहीं कि उसका गुजारा नहीं चल रहा है, गुजारा भी ठीक है, घर में है तो सब उसका ज़रूरत हो रहा है, लेकिन वो एज ए फैमिली हो रहा है कि हाँ मेरी पत्नी है तो भाई जो अपना उसका पति है उसको जो भी खर्च है उसका देता है, जो भी उसका ज़रूरत है उसको देता है। दैट इज एज ए फैमिली रिलेशन। समझिएगा बात, ठीक है? वो जो है फैमिली रिलेशन के कारण वो उसको देता है, नॉट एज ए कंपेंसेशन फॉर द वर्क। वो उसको जो काम के बदले जो जैसे मेहनताना मजदूरी दिया जाता है उस तरह से नहीं दे रहा है कि हाँ डेली का भाई आज आपने ये काम किया तो उसके बदले इतना दे रहा है, ये काम किया तो इतना दे रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद देखिए फर्क क्या है, समझिएगा इसको बहुत अच्छे सब एक एक वर्ड, इसलिए मैं बोला कि शब्दों को बहुत अच्छे से समझ के चलिए और रिवाइज करिए। आपको चेताया है लेकिन क्या क्या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसको कहने का मतलब है कि जो उसको जो भी कुछ उसको दिया जा रहा है मेहनताना मजदूरी, कोई आदमी जो काम कर रहा है, तो फिर उसकी अपनी मर्जी होती है कि उससे उसका वो कैसे इस्तेमाल करे, ठीक है? या अपना जो है गुजारा कैसे करे। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है तो उसके बदले उसको मान लीजिए डेली उसको 300-400 रुपए दे दिए जा रहे हैं, तो अब वो रुपए लेने के बाद वो फ्री है कि वो 400 रुपए जो डेली अर्निंग है, डेली वेज है उसका, उसको कैसे इस्तेमाल करे, उससे क्या खाए या उसका कैसे इस्तेमाल करे उस पैसे का, वो फ्री है उसके लिए। तो ये उसको फ्रीडम देती है कि अपना वो जीवन किस तरह चलाना चाहता है, गुजारना चाहता है। 300 रुपया मिला है तो उसको लेके सीधा शराब पी ले, या 300 रुपया जाके पार्टी कर ले और फिर खा पी के ख़त्म पैसा, या 300 रुपया का अपना सही से इस्तेमाल करे, अपना खाना पीना राशन भी लाए, घर में भी है, बच्चों के लिए है, पत्नी के लिए है, इस्तेमाल करे। तो देयर इज अ फ्रीडम, तो कि वो हाउ ही लिव्स, ठीक है? या मान लीजिए उसको काइंड ही कोई सामान दिया जाए, अनाज दिया जाता है, तो वो अनाज को चाहे तो उसको इस्तेमाल कर सकता है अपना कि ठीक है इसको खाने में इस्तेमाल कर, नहीं तो चाहे कि अरे अनाज मेरे पास है ही, इसको हम बेच देते हैं, बेच के पैसा से कुछ और ले लेंगे, या उसको बदल के बाजार में जाके उसको एक्सचेंज करके अनाज के बदले कोई और सामान राशन या जो भी है ले आएंगे बनिए से। तो देयर इज अ फ्रीडम हाउ ही यूजेस हिज इनकम। लेकिन यहाँ देखिए कि जो वाइफ है वो काम कर रही है, काम तो कर रही है, घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, और उसके बाद आपका खेतों में भी जाके मदद कर रही है, लेकिन क्या इसके बदले उसको कुछ ऐसा दिया जा रहा है उस काम के बदले कि जिसको वो अपने मन से जैसे हो इस्तेमाल करे? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, काम के बदले उसको नहीं दिया जा रहा है कुछ। हाँ, एज ए मेंबर ऑफ फैमिली, एज ए वाइफ, उसकी सारी ज़रूरतों को हो सकता है उसका हस्बैंड पूरा कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो अलग बात है। बट दैट इज, ऐसा नहीं है कि हाँ ये लीजिए काम किया तो आपको 100 रुपया, अच्छा काम किया ये लो 5 किलो अनाज, ऐसा
कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। तो चूंकि उसका कोई इनकम, हम कह सकते हैं कि इनकम नहीं है उसका, इनकम उस पत्नी का कोई इनकम है, सीता देवी का कोई इनकम है नहीं। तो जब इनकम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि शी इज अनएम्प्लॉयड। तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गई, सीता देवी हो गई अनएम्प्लॉयड। अब बात है जीतू की। तो जीतू क्या करता है? जीतू क्या कोई ऐसा काम करता है जिसके बदले में उसको कुछ रिसोर्स मिलता है? नहीं, वो तो अपना घूमने फिरने में भाई बहन दोनों टाइम गुजारता है। तो घूमने फिरने के लिए कौन उसको कुछ दे रहा है? कुछ नहीं मिलता है। तो दे आर डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड। तो देखिए, इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा है इफ यस व्हाई, तो आपको एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है कि क्यों हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। यानी यहाँ ये आपका अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है कि क्या आपने समझा ढंग से अनएम्प्लॉयमेंट कि नहीं समझा है, या ऑक्यूपेशन क्या होता है। कल तो इसीलिए आपको समझाए थे अच्छे से, ठीक। देखिए इसमें अब आगे क्या दिया जा रहा है। Inoccupation is a situation when a person does not get job despite his wish to work on prevailing wages। ठीक है, Inoccupation is a situation when a person does not get a job despite his wish to work on prevailing wages। ये कल मैंने आपको समझाया था कि ऐसा सिचुएशन है इनऑक्यूपेशन की, या तो उसको काम है ही नहीं, तो आदमी करेगा क्या? कितना ही चाहता है हाँ हाँ काम करूं, लेकिन काम ही नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि काम भी है, उसकी इच्छा भी है काम करने की, वो तैयार भी है काम करने के लिए। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि वो तैयार नहीं है क्योंकि उसके पसंद का काम नहीं है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि काम भी उसके पसंद का है, उसका मनमाना काम भी है और वो करना भी चाहता है, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं उसके बदले देने को तैयार है। ठीक है, उसको पैसा जो चल रहा है मार्केट में रेट, उस दर पर नहीं मिल रहा है। तो उसको या तो मजबूरी में उस वजह से काम या तो वो नहीं कर रहा हो, या कर रहा है तो कम रेट पर कर रहा है। अब यहां लिख रहा है कि सीता देवी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। तो सीता देवी जो है वो चूंकि बाहर तो कहीं काम करने जा ही नहीं रही है, वो तो अपने घर में या घर अपने खेतों में ही काम करती है। जीतू एंड सीतू आर वेरी यंग एंड दे कैन नॉट बी काउंटेड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ लेबर फोर्स एंड इन। हाँ देखिए, ये भी बात आती है कि जीतू और चूंकि उनका एज नहीं दिया था यहाँ, ठीक है, तो जीतू और सीतू क्योंकि 7 साल या 14 साल से कम, ठीक है, तो 7 से 14 साल, ठीक है, 14 साल से कम के आप आदमी को काम नहीं करा सकते। तो यहाँ ये लोग यंग हैं तो उनको हम वर्कर्स में नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो उनको हम अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड का बात ही नहीं आएगा क्योंकि वो वर्कर्स है ही नहीं, वर्कफोर्स में आएंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ दे रहा है कि जीत एंड नीदर जीतू सीतू एंड सीता देवी कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड बिकॉज ओनली द पर्सन्स ऑफ 15 to 59 एज ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। देखिए कही दिया ना मैंने, अभी आपको बोला है कि 14 साल तक जो है आप काम पर नहीं रख सकते या नहीं उनको कहा जा सकता है वर्कर। कोई वर्किंग एज जो होता है डिफाइंड वो होता है 15 से 59 तक, 60 में रिटायर हो जाता है। तो 15 से 59 साल तक की एज में जो आदमी है उसको हम वर्क फोर्स में या एज ए वर्कर काउंट करते हैं कि हाँ ये काम के लायक है, काम कर सकता है। तो 15 से 59 के एज ग्रुप में जो है, अब यहाँ कह रहा है कि आकाशेज सिस्टर जीतू एंड सीतू आर नॉट इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। जीतू और सीतू तो इस एज में है ही नहीं कि उनको कहा जा सके एम्प्लॉयड या नहीं, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, वर्कर्स के वर्किंग एज में नहीं आते हैं। आकाशेज मदर सीता देवी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड because she is not eager to earn money by doing work outside।
तो यहाँ दूसरे तरफ से कर रहा है कि चूंकि वो घर के ही काम में व्यस्त है, बाहर जाके वो काम नहीं कर रही है जिससे कि उसको काम के बदले में कुछ पैसा मिले, मेहनताना मिले, तो इसीलिए उसको भी हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि कोई आदमी काम कर रहा है, मान लीजिए जो है मेरा कोई दोस्त है और वो चाह रहा है कि ठीक है मेरा सामने जो है ज़मीन थोड़ा सा उस पर कोई बागीचा बना दे। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मिट्टी वगैरह का काम करना, मैं आके तुम्हारे आगे मिट्टी को ठीक से खोद ओद के उसमें पेड़ वेड़ लगा के बगीचा तैयार कर दूंगा। तो मैं जाता हूँ उसका बगीचा तैयार कर देता हूँ। तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन, क्योंकि मैंने ये सिर्फ अपना एक कैजुअल जो है फ्रेंडशिप के लिए किया कि हाँ मैं दोस्त है मेरा, तो उसके लिए मैं कुछ काम उसकी मदद कर देता हूँ। इट इज डन एज ए हेल्प, इट इज नॉट डन टू गेट सम मनी कि भाई हम बगीचा लगा देंगे तो बदले में हमको इतना पैसा मजदूरी उसका दे देना। तो दिस वर्क इज नॉट डन टू अर्न सम मनी, इट इज जस्ट डन आउट ऑफ फ्रेंडशिप और इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। तो in that case this work will not be counted as occupation and I will not be called employed। अब आपको समझ में आ गया ना? देखिए, दो आकाश's grandfather and grandmother not mentioned in the story cannot be called unemployed because they have become old and do not come in the age group of labor force 15 to 59। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आकाश के दादा दादी हैं, तो उनकी अभी यहाँ चर्चा नहीं की गई। दादा दादी है तो उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो 15 से 59 की एज से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो वो वर्किंग एज में नहीं आते हैं, तो उनके एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एम्प्लॉयड होना, अनएम्प्लॉयड होना आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स प्रेजेंटली इन इंडिया एंड बिहार आर इलस्ट्रेटेड इन टेबल नंबर 1। अब टेबल नंबर 1 हम देखते हैं, जिसमें कि इंडिया और बिहार का जो परसेंटेज है लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स हुआ कि जो लोग काम करते हैं, जो भी लोग 15 से 59 साल के एज ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो 15 से 59 साल वाले लोगों का डेटा है बिहार का और इंडिया का। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट।
Yes. So in table 1, which is labor force in India and Bihar 1999-2000, फर्स्ट कॉलम इज कंट्री स्टेट, सेकंड कॉलम इज, म्यूट कर दीजिएगा, सेकंड कॉलम इज रूरल एंड थर्ड कॉलम इज अर्बन। तो ये जो टेबल है, पहला कॉलम में जो है कंट्री या स्टेट का जो है सिलेक्शन है, सेकंड कॉलम में जो है ये परसेंटेज लेबर फोर्स है, यानी कि परसेंट, ये जो भी जो डेटा है, नंबर्स हैं, ये परसेंट है। और रूरल और अर्बन यानी कि जो वर्कर्स हैं वो रूरल में कितने परसेंटेज हैं और अर्बन एरिया में क्या परसेंट है उनका, इस तरह से डेटा बनाया गया है। समझेंगे इसको। जैसे फर्स्ट है इंडिया, पहला जो रो है वो है इंडिया कंट्री का, पूरे इंडिया का है। उसमें फर्स्ट जो है उसका रो है मेल, यानी इंडिया में मेल जो वर्कर्स हैं, यानी पुरुष हैं जो कि 15 से 59 साल की एज के, उनमें रूरल में मेल का क्या परसेंटेज है, तो 85.4, और अर्बन में क्या परसेंट है मेल्स का, 78.6। देखिए ये क्या कह रहा है, समझिएगा इसको, कि इंडिया में अगर हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, तो वहां जो है जो टोटल वर्किंग पीपल हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, देखिए समझिएगा, गांव में, पूरे इंडिया के गांव में जो काम काज करने वाले लोग हैं उसमें 85.4% जो है वो फीमेल है। ठीक है, 85.4% जो है वो मेल है। ठीक है, रूरल एरियाज में। टोटल पॉपुलेशन, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का। और फीमेल जो होंगे वो हैं 45.6%। मतलब जो महिलाएं हैं इस एज ग्रुप में, उस एज ग्रुप की महिलाओं की 45% महिलाएं कामकाज करने वाली हैं। समझ रहे हैं? गांव में जैसे जो पुरुष हैं जितने 15 से 59 साल की एज में, उसमें 85.4% पुरुष जो है वो कामकाज करने वाले हैं लेबर फोर्स में। जबकि जो महिलाएं हैं 15 से 59 साल की एज की, उसमें मात्र 45.6% महिलाएं हैं जो कामकाज करती हैं, जो लेबर फोर्स में आते हैं, वर्किंग में। और टोटल की अगर बात करें, टोटल डेटा की टोटल पॉपुलेशन, मतलब मेल फीमेल मिला के, तो अगर गांव रूरल एरियाज में देखा जाए तो टोटल जो पॉपुलेशन है 15 से 59 साल की, मेल फीमेल सब, उसकी 66% जो है, जो लोग हैं वही कामकाज करते हैं टोटल पॉपुलेशन का। यहाँ मेल फीमेल अलग अलग नहीं। ये समझ में आया क्या है डेटा? हाँ, बोल के बताएंगे अभिषेक। समझ में आ गया कि फिर से समझाएं? समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो रूरल में हमने देख लिया कि गांव के जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 15 से 59 साल के जो लोग हैं, तो अगर हम मेल्स का अलग से ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जितने मेल्स हैं उसका 85% मेल कामकाज करते हैं। फीमेल्स का अलग से देख रहे हैं गांव में, तो देख रहे हैं कि गांव में जो 15 से 59 साल की फीमेल्स हैं उसका 45% जो है वो कामकाजी हैं।
और सभी को मिला के देख रहे हैं, यानी जितने भी लोग गांव में पूरे देश में जो 15 से 59 साल के एज में हैं, तो उसके सिर्फ 66% ही टोटल कामकाजी हैं। अब हम अर्बन एरियाज में देखते हैं, शहरी क्षेत्र में देखते हैं। शहरी क्षेत्र में जो मेल्स हैं उसका 78% कामकाज करते हैं। फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ 20% या 21% ही है जो कामकाज करती हैं, और टोटल ले लें तो मात्र 51% हैं जो कामकाज करते हैं लोग वर्किंग एज। ये तो हो गया पूरे इंडिया का डेटा। अब बिहार का डेटा देखते हैं। बिहार के गांव की क्या हालत है कि अगर रूरल एरियाज में मेल्स की बात करें तो टोटल मेल्स से 86 या 87% जो है वो कामकाज करते हैं। तो पूरे देश के एवरेज से ज़्यादा है। पूरे देश का एवरेज था 85.4% रूरल मेल्स का, लेकिन बिहार में जो है ये 87% है, तो ज़्यादा है। फीमेल्स जो हैं वो बिहार के गांव में वर्किंग एज में 28.9 यानी 29% फीमेल्स जो हैं वही सिर्फ कामकाज करती हैं। तो ये कम है पूरे इंडिया से। पूरे इंडिया में है 45.6%, जबकि बिहार में गांव एरिया में सिर्फ उस एज की 29% महिलाएं ही काम करती हैं बाहर कुछ, यानी महिलाएं कम बाहर काम करती हैं बिहार के गांव में। टोटल पॉपुलेशन का ले लें गांव में तो 59% जो है वो कामकाज करते हैं, जबकि टोटल पूरे कंट्री का जो है वो है 66%। तो यहाँ टोटल लेबर फोर्स की अगर बात करें, वर्किंग एज की बात करें, तो उसमें हमारे यहाँ बिहार में जो देश का एवरेज है, इंडिया का एवरेज है, उससे कम लोग गांव एरिया में कामकाज करते हैं अलग से। अब अर्बन बिहार के शहरों की हालत देखते हैं। अर्बन एरियाज में जो है मेल्स 75.7% काम करते हैं, यानी टोटल जितने वर्किंग मेल मतलब वर्किंग एज के मेल्स हैं 15 से 59 के एज में, उसका 75.7% जो है लोग वो कामकाज करते हैं शहरों में। और ये जो है इंडिया के डेटा से थोड़ा सा कम है। इंडिया का पूरा देखें तो 78.6 था और इसका जो है 75.6, यानी कि 3% का लगभग कमी। फीमेल्स की अगर देखा जाए अर्बन एरियाज में तो मात्र 12.5% फीमेल्स कामकाज करती हैं। तो बिहार के शहरों में जो महिलाएं हैं कामकाजी उम्र की, मात्र उनमें 12.5%, यानी कि 8वां हिस्सा, 8 में से एक ही महिला जो है गांव में बिहार के शहरों में, तो ऐसी बिहारी लड़कियां या बिहारी महिलाएं काम करती हैं। 8 में से मात्र एक, 12.5% हो गया। तो ये जो है इंडिया के एवरेज से काफ़ी, इंडिया में तो फिर भी 20.9 यानी 21% था, यहाँ उसका उलट गया 12% हो गया बिहार में महिलाएं कम काम करती हैं बाहर में। और टोटल अगर हम पॉपुलेशन अर्बन की देखेंगे, यानी शहर में रहने वाले लोगों की अगर पूरी बात करें, तो 48.4% जो है ये कामकाज करते हैं। यानी बिहार के शहरों में रहने वाले जो लोग हैं टोटल, उसका 48% लोग जो है वो कामकाजी हैं। तो इस तरह से हमने एक डेटा देखा कि कितने लोग हैं जो कामकाज करते हैं, ऑक्यूपाइड हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो गाँव में, चाहे देश के गाँव में, चाहे देश के शहरों में, और सिर्फ बिहार राज्य के गाँव में या बिहार राज्य के शहरों में, देश में हमने देख लिया कि कितने अगर गांव में है तो कितने पुरुषों को कामकाज मिलता है, कितनी महिलाएं कामकाज मिलता है या करती हैं, और टोटल कितने करते हैं। उसी तरह हमने शहरों में भी देख लिया इंडिया का, और फिर हमने बिहार के भी गांव और शहरों का देख लिया। ये डेटा सब जो है 2001 का रिपोर्ट पर है।
तो अभी तक इस नोट्स में हम लोग जो भी देख रहे हैं सब 2001 तक का ही लेटेस्ट डेटा है। हाँ 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 हाँ, पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको जैसे इस टेबल में लिखा है वैसे डेटा के बाद ब्रैकेट में अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं, मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हो उसमें पैराग्राफ में आप मेंशन कर रहे हैं कि बिहार में इतने % लोग जो है वर्किंग हैं, तो ब्रैकेट में उसका ये लिख दीजिएगा, कम से कम साल लिखना है, ऐसे तो पूरा लिखना है। जैसे ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट, तो इसका शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को NHRC। तो आप उसको ब्रैकेट में उसके बगल में लिख देंगे NHRC रिपोर्ट, 2001, ठीक है। हाँ, नहीं तो और शॉर्ट में लिखने की हड़बड़ी में है तो रिपोर्ट वर्ड छोड़ दीजिए, खाली खाली NHRC, 2001, ये आपको लिख देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो खाली 2001 भी लिख दीजिएगा तो भी ठीक है, एक आध नंबर कम मिलेगा। सर ये पीटी में पूछ सकता है ये रिकॉर्ड? ये पीटी में पुराना नहीं पूछेगा, ये नया पूछेगा आपसे। नया आ गया होगा? हाँ, नया आया हुआ है, हम आपको दे देंगे, हम आपको भेज देंगे नया जो है। बिल्कुल आपको बोले कि नया सब चीज़ आ गया है, अब तो 2024 चल रहा है, 2011 का तो तक का डेफिनेट, और ये सब तो आपका जो डेटा है ये 10 साल वाला नहीं है, ये तो 1-2 सालों में होता रहता है, तो ये तो इधर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सर्च करिएगा ना गूगल पर, यही जैसे है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, या जो जैसे टेबल का नाम दिया हुआ है ना, लेबर फोर्स इन इंडिया एंड बिहार, और कॉमा देके लिख दीजिएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट जो है, बस, तो अपने आप जो लेटेस्ट होगा वो आपको आ जाएगा। नहीं तो नहीं मिलेगा तो हमको कहिएगा, हम आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, पीटी में पूछा जाएगा तो लेटेस्ट, ऐसे भी मैंने आपको जो कुछ कुछ बिहार का भेजा था अभी पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, तो उसमें ये और डिटेल में ये हम लोग को मिल जाएगा। इसमें देखिए, ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमिक सर्वे में डेफिनेटली ये मिल जाएगा, मुझसे पूछिएगा आप, मैं बता दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना वो, डेटा से तो पूछ ही देता है एक आदमी। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको उसको, फर्स्ट चैप्टर जो होता है उसमें सब तरह का डेटा ही रहता है जनरली, हर, फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे? हाँ फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे के, हेलो, हाँ फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर भेज दीजिए। हाँ भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेंगे। तो जो है उसमें आपको लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा। मतलब इधर का 1-2 साल का अगर लेटेस्ट, जैसे एग्जाम पर डिपेंड करता है एग्जाम कब हो रहा है, अगर, हाँ तो सितंबर में अगर होगा ना तो इसी साल का पूछेगा, मतलब कि 1 अक्टूबर के 1 दिन पहले। हाँ हाँ, तो ठीक है, तब इसी बार का आएगा। नहीं तो कई बार तुरंत आया रहता है सर्वे और 1-2 महीना बाद एग्जाम रहता है तो पिछले बार का पूछ देता है, क्योंकि जानता है कि बच्चे इतना अभी अलर्ट नहीं होंगे कि इस बार वाला देख लिए हों, तो वैसे केस में पहले का आ जाता है। नहीं तो अगर टाइम हो गया है ठीक ठाक, 4-5 महीना हो गया है, तो फिर इसी बार वाला आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट, तो हम सर्वे में से आपको देख के भेज देंगे। ओके, सो ये तो था आपका लेबर फोर्स का आइडिया कि कितने लोग कामकाज कर रहे हैं देश में और बिहार में और गांव में और शहरों में, ठीक है। बिहार में गांव में कितने लोग कामकाज कर रहे हैं, कितने % लोग हैं मेल्स, कितने % फीमेल्स, और टोटल कितने % काम कर रहे हैं। उसी तरह शहर में कितने % मेल्स काम कर रहे हैं, कितने % फीमेल्स काम कर रही हैं, कितने % टोटल लोग काम कर रहे हैं। ये जो है आपको डेटा बिहार और इंडिया के लिए यहाँ हमने देख लिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमने देख लिया, समझ लिया डेफिनेशन उसका। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। आप जानते ही हैं
कि किसी भी देश की एक बड़ी समस्या होती है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेकारी होती है, बेरोजगारी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। अगर कोई काम करेगा आदमी तो काम के बदले में उसको इनकम होगा, इनकम होगा तो वो अपना हिसाब से ज़िंदगी जी सकता है, जो मन चाहे वो चीज़ अपना खरीद के इस्तेमाल कर सकता है, जीवन गुजारा, जैसे खाने पीने की जो इच्छा हो अपना खा पी सकता है, जैसे रहना हो वैसे रह सकता है। तो कहने का ये है कि मतलब हर चीज़ आपके इनकम से जुड़ी हुई है, और इनकम किससे जुड़ी हुई है? वर्क से जुड़ा हुआ है। जैसा आप काम करेंगे तो उसी हिसाब से आपको इनकम भी होगा। तो अगर काम मिलेगा तो इनकम होगा, काम नहीं होगा तो इनकम कहाँ से होगा? बैठा के तो कोई पैसा देगा नहीं। तो इसीलिए जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि काम काज कितने लोगों को मिल रहा है, या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि काम काज करेंगे तो कमाएंगे, कमाएंगे तो अपना कुछ वो खर्च करेंगे, जिएंगे जैसे मन है ठीक से जिएंगे रहेंगे। नहीं कमाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे खाली। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए बेरोजगारी वहाँ की एक बड़ी समस्या होती है। Consequently, the labor force is not properly utilized। तो नेचुरल बात है कि भाई अभी आपने पीछे पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा कि आदमी जो है कैसे वो एक रिसोर्स हो जाता है। आदमी जो है वो एक रिसोर्स की तरह हो जाता है, एक प्रॉपर्टी हो जाता है, संपत्ति हो जाता है देश का, समाज का, अपने परिवार का। तो अगर वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कमा रहा है। कमा क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्किल्स है। तो अगर जो लोगों के अंदर में टैलेंट है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, उसका सही से इस्तेमाल होगा, तो हर व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो स्किल है, उसका इस्तेमाल होगा, तो कितना काम तेजी से होने लगेगा। लोग, हर किसी को काम मिल जाए अगर, तो जो भी काम होगा बहुत तेजी से होने लगेगा। हर परिवार जो है वो काम करने, उसके यहाँ काम करने लगेंगे लोग, उसकी इनकम होने लगेगी अच्छी, तो उसका जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर लेबर फोर्स पूरा यूटिलाइज हो तो कितना डेवलप हो जाएगा कोई कंट्री। और यहाँ क्या हो रहा है? बेरोजगारी के कारण कि लोगों के अंदर काम करने का टैलेंट है, उनके अंदर स्किल है, और वो रेडी भी है, लेकिन काम उनको मनचाहा चाहे नहीं मिल रहा है, या काम ही नहीं है, या काम भी है मनचाहा भी है लेकिन उस रेट पर पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो भी कारण हो, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो बेकार बैठे हुए। अंदर भरा हुआ है नॉलेज, अंदर भरा हुआ है स्किल, टैलेंट, लेकिन उसका बाहर कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई कमाई नहीं है। जब कमाई नहीं है तो आप जीवन कैसे अच्छे से गुजारेंगे? आप परेशान रहेंगे, आपका परिवार परेशान रहेगा। तो यही कहा, तो समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है। देखिए, परिवारों से ही देश बनता है, परिवारों से ही समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो अगर एक परिवार परेशान होगा तो फिर परिवार की परेशानी होगी, वो समाज की परेशानी हो जाएगी, और समाज की परेशान है मतलब देश परेशान है। तो अगर एक परिवार का उपाय हो जाएगा तो पूरे देश का उपाय हो जाएगा। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एक परिवार, जो भी आदमी है रह रहा है, उसका टैलेंट का अगर यूज होने लगेगा तो इस तरह हर किसी को काम मिल जाएगा, तो भाई फिर किसी को कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी है, बेकारी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर देश के लिए। इट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड बिहार। Unemployment is prevalent in rural as well as urban regions। कहा जा रहा है कि इंडिया और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो गांव क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्रों में भी है। यानी गांव में भी लोग बेकार हैं और शहरों में भी लोग बेकार हैं। There is a great difference between the nature of rural and urban unemployment that can be viewed like this।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट that can be viewed like this. The percentage of unemployed labor force on the level of India and Bihar is shown in table number 2. अब टेबल नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? अच्छा, देखिए टेबल नंबर 2 जो है वो अनएम्प्लॉयड का डेटा है। देखिए पहले हम लोग जो टेबल नंबर 1 देखे वो जो है एम्प्लॉयड का डेटा था कि कितने परसेंट एम्प्लॉयड हैं, और अब जो ये टेबल नंबर 2 है ये जो है अनएम्प्लॉयड का डेटा है। तो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि अगर इंडिया का देखें कि रूरल एरियाज में कितने मेल्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, 7.2%। फीमेल्स कितनी अनएम्प्लॉयड हैं तो 7.0%। टोटल कितने हो गए तो नेचुरल है 7.2 ही परसेंट आ रहा है। अर्बन में जो है देखेंगे तो पूरे इंडिया का अगर तो मेल्स में कितने जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं 7.3%, और फीमेल्स में कितने अनएम्प्लॉयड हैं तो 9.4%, और टोटल कितने हैं तो 7.7%। उसी तरह बिहार का अगर पर्टिकुलर देखें तो बिहार में जो है मेल 7.2% है, फीमेल्स जो है ये रूरल एरियाज में फीमेल 6.2% है, और टोटल जो है 7%। जबकि अगर अर्बन एरियाज की बात कही जाए तो मेल्स जो है 8.7% हैं अनएम्प्लॉयड अर्बन एरियाज में, फीमेल्स जो है 13.5% अनएम्प्लॉयड, और टोटल है 9.3%। तो दो तरह से डेटा दे दिया गया है। पहले टेबल में एम्प्लॉयड का दे दिया गया कि कितने लोग काम करते हैं, दूसरा टेबल दे दिया गया कि कितने लोग काम नहीं करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा ही था आपसे कि बिहार में महिलाएं शहरों में बहुत ही कम काम करती हैं, इसलिए देखिए उनका यहाँ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में 9.4% है, बिहार में फीमेल्स का 13.5%। यानी कि बिहार में महिलाएं ज़्यादा बाहर काम करना का कल्चर नहीं है या पसंद नहीं करती हैं, जो भी कारण से हो। तो दैट वाज गिवन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है हमने देखा बिहार का कि शहर और गांव में अलग अलग तरह का सिचुएशन है, ठीक है, जिसको कि हमने डेटा से देखा। हाँ हाँ हाँ, नहीं उतना तो नहीं पूछना चाहिए। हाँ, अब यहाँ देखिए आपको जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक चार्ट टाइप का बना दिया गया है, जिसको आप लोग बना लेंगे कॉपी में याद करने के लिए। डेफिनेटली बना लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चार्ट में देख रहे हैं ऊपर की रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव के क्षेत्रों में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। तो 3 टाइप का है गांव में: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये गांव क्षेत्रों में रूरल एरियाज में ये 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। शहरों में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ भी 3 तरह के हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरह के हैं। फर्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट,
थर्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शहरों में 3 अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और थर्ड है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, अब इसको देखेंगे हम लोग कि क्या है, ये समझेंगे। देखिए, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट caused by change in season is called seasonal unemployment। देखिए, एक लाइन में डेफिनेशन दे दिया, द अनएम्प्लॉयमेंट caused by change in season is called seasonal unemployment। यानी कि जब मौसम में बदलाव की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उसको हम सीजनल यानी मौसमी अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि मौसम बदल जा रहा है। तो आप कहेंगे सर मौसम बदलने से क्या हो जा रहा है? देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन अ सिचुएशन when a person gets a job during farming season and becomes workless in non-farming season। तो आपको पता होगा कि फार्मिंग जो होती है, खेती जो होती है, वो सीजनल होती है। एक सीजन में खेती का काम होता है, फिर उसका काम, फिर जब काम हो जाता है तो फिर उसमें कोई काम वैसा ज़्यादा नहीं रहता है। फिर उस फसल अपने आप ग्रो करती है, पकती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन आता है, जब उसको काटने का समय आता है तो उस समय फिर वर्क की ज़रूरत होती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स इन अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन गेट्स अ जॉब ड्यूरिंग फार्मिंग सीजन। तो जब खेती का, जब बोने का होता है तो उस समय उसको मजदूरी काम मिल जाता है। एंड बिकम्स वर्कलेस इन नॉन फार्मिंग सीजन, उसके बाद जो है फिर उसको चूंकि बुआई हो जाता है तो फिर कोई काम नहीं रहता है, तो फिर जो है वो बेकार हो जाता है। This type of unemployment mainly occurs in rural agricultural sector। कहा जा रहा है कि ये इस तरह का जो बेरोजगारी है, बेकारी है, ये मेनली कहाँ होता है? गांव क्षेत्र में खेती बाड़ी के काम में। खेती जहाँ होती है, कृषि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, यानी खेती बाड़ी के काम में इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है कि जब फसल बोने का समय, बीज बोने का समय आया, या तो बुआई जिसको कहते हैं, बुआई का समय आया या रोपनी कहते हैं, तो उस समय काम मिल गया, लोगों को अपना काम किया। फिर जब हो गया तो फिर काम नहीं है, बैठ गए हैं। फिर जब अगला पक जाएगा, फसल तैयार होगा, जब कटाई का समय आएगा तो फिर से काम मिलेगा, उतने समय बेकार रहते हैं। तो इस तरह का वो मौसम के अनुसार काम मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसलिए हम इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर इज सोलली dependent on monsoon, that is totally variable, and we see it in different forms like flood and drought। कहा जा रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है, और मॉनसून जो है दैट इज टोटली वेरिएबल, वो बहुत ही बदलने वाली होती है। आपको पता है, बताया है शायद ज्योग्राफी में, कि मॉनसून का कोई फिक्स डेट नहीं है कब आएगा। कभी एक हफ्ता पहले आ जाएगा, कभी 15 दिन पहले आ जाएगा, महीना भर 15-20 दिन पहले आ जाएगा, या कभी कभी तो कभी भी 2 महीना पहले भी बारिश होने लग जाती है। पूरा मॉनसून जैसा नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बारिश ठीक ठाक हो जाती है। और कभी जो है 15 दिन लेट है, कभी 20 दिन लेट है, कभी तो एक तो आने जाने का समय पक्का नहीं है कि कब आएगा।
दूसरा, कितना बारिश होगा ये भी पक्का नहीं है, कभी पहले ही आएगा और इतनी तेज बारिश आएगा, कभी आएगा और 10 दिन तक धीमे धीमे थोड़ा बहुत बारिश होगा, एक दिन होगा बारिश, उसके बाद एक हफ्ता गायब है, खाली दिखा के चल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अनसर्टेनिटीज होता है हमारे यहाँ मानसून का, रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलर नहीं है कि हाँ इस डेट पर आया, बारिश इतना हुई, ठीक है, इतना दिन तक बारिश हुआ। तो ना इसको, जब आने को आपने पढ़ा है शायद ज्योग्राफी में, ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं, जब मानसून आता है, शुरुआत होती है, तो उसे कहा जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून। तो ना तो इसका आना फिक्स्ड है, यानी ऑनसेट का कोई पता नहीं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितना बारिश होगा ये भी फिक्स नहीं है, कभी कम बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। देन पीरियड ऑफ रेनफॉल, कितने दिनों तक बारिश होगा ये भी पक्का नहीं है, कभी एक दो दिन होके रुक जाएगा, फिर एक हफ्ता गायब, कभी लगातार एक हफ्ता है उसके बाद फिर गायब, या कभी लगातार हफ्ता है फिर एक दिन, मतलब ये जो पैटर्न है कितने दिन कितनी बारिश, ये भी कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मानसून इज हाईली एरेटिक, कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं एरेटिक, ERRATIC, एरेटिक, TIC, एरेटिक, एरर से बना है, एरर से एरेटिक, मतलब गड़बड़ी करने वाला है, कोई इसका फिक्स नहीं है, कब आएगा कब जाएगा, कितना दिन आके मेहमान बनेगा, हाँ गड़बड़ी से भरा हुआ, क्योंकि इसका आने जाने का पता नहीं, कब आएगा, कितना दिन रहेगा, कब चला जाएगा, ठीक है, पता चला आया और मुंह फुला लिया तो एक ही दिन बाद बारिश बंद, बादल खूब आया, किसान देखा कि हाँ बारिश खूब होगा, बीज बीज बो दिया, एक दिन बारिश हुआ उसके बाद शांत हो गया, अब किसान का फसल लेकर अब बीज बो दिया, लो पानी नहीं, बारिश नहीं हो रहा है, सूख जाएगा बीज, खराब। तो ये हाईली एरेटिक मानसून जो है, और हम लोग का जो एग्रीकल्चर है मेजर, वो बारिश पर डिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ये भी होता रहता है, और इसके कारण से क्या होता है कि उसी तरह से आदमी का कामकाज अफेक्ट होता है, जो लोग मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम काज करते हैं, उनको उनका कामकाज गड़बड़ा जाता है, अब वो भी बैठे रहते हैं, कब आएगा बारिश तो हम लोग को काम मिलेगा, कब आएगा रोपनी का समय आएगा। तो जैसे यहाँ टोटली वेरिएबल वर्ड यूज किया है, उसकी जगह ये इन लोग का ट्रांसलेशन थोड़ा बिहार के लोग का उतना ठीक नहीं रहता है, तो क्या खैर उसको, तो उसको हम हाईली एरिएटिक या एनोमलस उसको बिहेवियर कहते हैं, एनोमलस, ANOMAM, M for man, N anomalous, हाँ MALOUS, हाँ एनोमलस मतलब गड़बड़ वाला, ये भी वही मतलब है कि जो नॉर्मल से हट के, जो सही से, जो सही होना चाहिए उससे अलग गलत हो रहा है। एनोमली वर्ड से बना है, एनोमली मतलब होता है सम एरर, फॉल्ट, या डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। जैसे देखिए सामान्यतः क्या होता है कि मोबाइल जब आप चार्ज करते हैं तो मोबाइल थोड़ा गर्म होने लगता है, सब दुनिया जानता है। अब मान लीजिए आप अपना मोबाइल चार्ज करें तो आपका मोबाइल ठंडा होते जा रहा है, जितना देर चार्ज हो रहा है उतना ठंडा होते जा रहा है, तो ये क्या है, एनोमलस बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि मोबाइल जब चार्ज होता है तो वो हीट होता है, गर्म होता है, और आप संयोग से अपना मोबाइल लगा रहे हैं तो वो ठंडा होते जा रहा है, और नॉर्मल से कुछ देर बाद पता चला कि उस पर बर्फ जैसा जम रहा है, तो ये तो आप कहेंगे कि दिस इज एनोमलस बिहेवियर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, है ना। चलिए, तो हाँ डिफरेंट, डिफरेंट बिहेवियर नहीं, डिफरेंट,
एनोमलस के बाद बिहेवियर तो यूज आता ही है। डिफरेंट, एनोमलस का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल या यूजुअल। नॉर्मल और यूजुअल। यस सर। यानी जैसा जनरली देखा जाता है उससे अलग हटके। अब जैसे एक टीचर है और वो बच्चों को क्लास में जो काम नहीं करते हैं, अपना होमवर्क नहीं करते हैं, उनको पीटता है, पनिशमेंट देता है, तो बच्चे क्या है, रोने लगते हैं, या मतलब पनिशमेंट मिलती है, मार पड़ती है तो दुखी हो जाते हैं, चिढ़ते हैं। अब कोई दिन ऐसा हो कि कोई लड़का आया, उसने होमवर्क नहीं किया, उसको टीचर ने एक तमाचा मारा, तो वो बोला टीचर को थैंक यू सर, ठीक है तो क्या होगा, टीचर लगेगा अरे ये अजीब लड़का है भाई, सब बच्चे तो जो है दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, ये तो जो है थैंक यू बोल रहा है मारने पर तो उसको झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा उसको, कोई बड़ा मुस्कुरा के बोले थैंक यू सर तो वो खुद ही शॉक में आ जाएगा कि ये क्या हुआ, मैंने मारा और ये मुस्कुरा के थैंक यू कह रहा है। तो दैट इज एनोमलस, कि स्माइलिंग एंड सेइंग थैंक यू आफ्टर बीइंग बीटन बाय टीचर। समझ गए सर। हाँ समझ गए। तो अब जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम मॉनसून की बात कर रहे थे कि मॉनसून पर ही चूंकि जो है हमारा ये जो है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, तो जो लोग भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहते हैं वो जो है उनको कामकाज जो है अफेक्ट हो जाता है मॉनसून से। तो मॉनसून चूंकि इतने गड़बड़ वाला है तो उसी हिसाब से लोगों को काम में भी गड़बड़ हो जाती है, उनको काम नहीं मिलता है, इंतजार में बैठे रहते हैं कब काम मिलेगा। तो और ख़ास करके जब इसकी वजह से कोई नेचुरल जो है कैलामिटीज़ आ जाते हैं या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइक फ्लड एंड ड्रॉट, तो और भी उनका अफेक्ट हो जाता है, रोज़गार जो है बेचारे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो देखिए नाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। अभी आपको समझाया कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल ऑक्यूपेशन है, जो सीजन के हिसाब से होता है। As farming activities are divided into different phases like planting, irrigating, weeding, harvesting, etc. And after each phase, the laborer becomes jobless because the farmers have no alternative work in this period. And this is situation that creates seasonal unemployment. कहा जा रहा है कि जैसे जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, दैट इज द एक्टिविटीज इन द फील्ड्स, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, वो अलग अलग फेजेस में बटे होते हैं। यानी कि इस समय जब ये ऐसा मौसम होगा तो ये काम होगा, उसके कुछ दिन बाद फिर ये काम होगा, फिर कुछ दिन बाद ये काम होगा, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में फेजेस में बटा होता है काम। लाइक प्लांटिंग यानी बोना, बुआई जिसे कहते हैं, रोपनी कहते हैं। इरिगेटिंग यानी सिंचाई करना, उसको पटाना। वीडिंग यानी निराई करना, उसका जो घास फूस उग जाते हैं, झाड़ी वगैरह उग जाती है, उसको उखाड़ है। निराई मतलब वीडिंग, निराई कहते हैं जब बोले ना कि घास फूस जो उग जाते हैं फसल के साथ, उनको तोड़ तोड़ के निकाल दिया जाता है, हटा दिया या काट दिया जाता है। छोटा छोटा घास को, घास मतलब लॉन का घास काटना नहीं, खेतों खेतों में जो फसल लगाई जाए, मान ली गेहूं लगाए, अब गेहूं के साथ साथ और भी कुछ जो है, कुछ झाड़ियां या कुछ घास फूस वगैरह उग जाता है, खरपतवार वगैरह, तो उनको हटाया जाता है क्योंकि वो फसल को नुकसान, उसको फसल को ठीक से उगने नहीं देते हैं। खरपतवार की घास को, अरे सब चीज जो भी है, घास फूस भी हुआ, खरपतवार हुआ, ठीक है, या झाड़ियां हुई, जो भी कुछ फसल के अलावा उग जाता है खेतों में, उसको जाके हटाया जाता है, उसी को कहते हैं वीडिंग, हिंदी में उसको कहते हैं निराई करना।
देखिए किसान जो होता है वो समय समय पर अपने खेत रोज जाता है, अपना वो छोटा वाला क्या बोलते हैं उसको, हंसुली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंसिया, सिकल जो होता है, हाँ, तो उससे ले जाके और जो है पूरा खेत अपना देखता है, जहाँ जहाँ घास वगैरह उग रही होती है उनको काट काट के, छांट छांट के, या तोड़ के, या नोच के, या काट के, जैसे भी हटाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। ये वीड्स, इनको वीड्स कहते हैं। जो भी क्रॉप के अलावा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है फील्ड्स में, उसको हम कहते हैं वीड। और उस वीड को हटाना वीडिंग कहते हैं, या हिंदी में। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग, दैट इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप्स एंड सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। तो हार्वेस्टिंग जो है कटाई, जो आप समझ गए कि जब कटाई, जैसे कटाई करिए, आदमी काटे, मशीन से कटवाइए, ठीक है, जैसे कटवाइए, हार्वेस्टर से कटवाइए चाहे आदमी से कटवाइए, तो जो है प्रोसेस वो हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि चूंकि ये काम अलग अलग समय पर होते हैं, फेज में बटे होते हैं, एंड आफ्टर ईच फेज द लेबरर्स बिकम जॉबलेस, और हर फेज के बाद जो है मजदूर जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, कि भाई अब जैसे पहले रोपाई हुआ, बुआई हुआ, बो दिया, बीज डाल दिया, रोपाई हो गया या बुआई हो गया, उसके बाद अब कोई काम नहीं, तो फिर बैठ गए कुछ दिन, फिर उसके बाद जब उसको सिंचाई करने का, पानी देने का समय, पटाने का समय आएगा, तो फिर उसको काम मिलेगा, फिर जब हो जाएगा पटाना, फिर बेकार, फिर जब उसको निराई करने का समय आएगा, खेतों में जाके उस सफाई वफाई करने का समय आएगा, तो उस समय काम मिलेगा, फिर खत्म। फिर फाइनली जब फसल पक के तैयार हो जाएगा, तब कटाई का समय आएगा, और फिर जो है उसको काम मिलेगा। तो ये सब जो है कि फेजेस में काम मिलता है, कुछ दिन काम मिला, फिर एक महीना साफ, फिर कुछ दिन काम मिला, एक महीना साफ। तो इसके चलते जो है क्या होता है, और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बिकॉज द फार्मर्स हैव नो ऑल्टरनेटिव वर्क इन दिस पीरियड। और ये जो बीच का समय होता है, दो फेज के बीच का, उसमें किसानों के पास कराने के लिए कोई काम होता नहीं है, तो इस वजह से जो है जितने भी जो खेतीहर मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द चेंज ऑफ सीजन। ओके, समझ गए होंगे अच्छे से ये। यहाँ देखिए एक फोटो आप देख सकते हैं कि पीपल एंगेज इन अदर वर्क इन द होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होता क्या है कि जो खेतीहर मजदूर होते हैं, तो वो बीच में उनको काम मिलता नहीं है, जब खेतों में काम मिलता है तब तो है, फिर बेकार हो जाते हैं, तो उस समय में वो कोई भी जो छोटा मोटा काम जानते हैं वैसे काम को पकड़ लेते हैं। जैसे मेरा ही जो ये है, कुछ लोग हैं जो मेरा खेत में करते हैं काम, मतलब वही लोग खेती करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना वो जो जिसको हमने दे रखा है, तो वो क्या करता है कि जब सीज़न नहीं रहता है खेती का, या काम जिस समय नहीं रहता है, तो उस समय अपना वो डेली वेज पर किसी एक कारपेंटर के यहाँ काम करता है, ठीक है। जब खेत में कोई काम नहीं है तो कारपेंटर के यहाँ गया, डेली वेज पर काम किया, डेली का उसको 300 रुपया, 250 300 जो भी है देता है वो, तो वो काम करता है वहाँ। तो ये जैसे एग्जाम्पल हो गया कि वो बढ़ई का काम देख लिया, सीख लिया, तो अपना वो किसी बढ़ई के साथ काम करता है, ठीक है। जब फिर उसके अपना खेत में काम रहेगा वहाँ कर लेगा, फिर जब काम वहाँ ख़त्म हो गया तो बढ़ई के साथ काम कर लिया। तो इस तरह से जो है मतलब अपना लोग एक चलाते रहते हैं। और वही फोटो यहाँ दिया जा रहा है कि इसी तरह कोई आदमी का दिखाया गया है कि उसमें वो कुछ बना रहा है बैठ के, बच्चों के खेलने की चीज़, और उसको तो यही लिखा हुआ है, पीपल एंगेज इन अदर वर्क इन होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लोग जो है अपने आप को कुछ कामकाज करने के लिए दूसरे कामों में अपना लगा लेते हैं, ताकि काम कुछ चलता है। Now, next type of unemployment in rural areas is disguised unemployment.
गांव एरिया में पाया जाने वाला जो दूसरा टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, पहला टाइप तो था सीजनल, जो कि मौसम बदलाव के कारण हो जाता है। दूसरा जो है टाइप है दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपा हुआ। डिसगाइज समझते हैं, जो छुपा हुआ है, दैट कैन नॉट बी सीन। जैसे हम लोग डिसगाइज पर हम लोग कहीं छुप जाते हैं, कोई हमें देख नहीं पा रहा है। बच्चों को देखिए आदत होती है छुप के बोलेंगे, कोई उन्हें देख नहीं सके, ये बचपना होता है, इस तरह का खिलवाड़ होता है। तो डिसगाइज मीन्स हिडन, तो अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये काफ़ी होता है, मैंने कल आपको समझाया भी था ये। देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट टू। मैंने कल बताया था आपको कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या होता है? पीपल लुक एम्प्लॉयड अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने से लगता है कि जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। देखने से जो अगर लगे, कोई बाहरी आदमी आएगा देखेगा तो उसको लगे कि अरे भाई सब तो काम कर रहे हैं। तो पीपल लुक एम्प्लॉयड अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड यानी छुपे हुए जो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें लोग ऐसे देखने से लगेगा कि हाँ कामकाज तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक जगह स्कूल में मोटर बन रहा है, तो सारा स्कूल का टीचर बैठ के देख रहा है कि मोटर कैसे लग रहा है। अब बाहर से कोई आएगा देखेगा, उसको लगे अरे भाई सब टीचर देख रेख कर में अपने मोटर लगवा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सब खाली अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है। ठीक है, वहाँ एक टीचर भी बैठ जाएगा या एक से दो टीचर बैठ जाएगा तो वो गाइड कर देंगे कैसे क्या करना है मोटर वाले। लेकिन सब वहाँ बैठे हुए किस लिए? कि अपना टाइम पास कुछ देखने के लिए नया मिले, एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सी जगह, जैसे ये तो है कि ठीक है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई जगह है कि काम करते रहते हैं लोग। ठीक है, काम करते हैं लोग। देखिए जैसे यहाँ पीपल लुक एम्प्लॉयड, दे हैव प्लॉट्स ऑफ लैंड वेयर दे गेट वर्क। ठीक है, ऐसे लोग जो हम जिसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो वो क्या है कि कुछ ऐसे जमीन होती है जहां वो काम करते हैं, जहां वो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली इन द फैमिलीज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ये कहा जा रहा है कि ये खास करके ये देखने को मिलता है ऐसे परिवारों में जो लोग खेतीबाड़ी के कामकाज में लगे रहते हैं। When in a particular agricultural activity 8 persons become engaged where only 5 persons are required, in such a situation 3 persons are surplus worker because they are toiling on the same plot of land where already 5 persons are working। कि वही आपको सिचुएशन जो हम कल समझाए थे कि जरूरत वहां मात्र 5 लोगों की है, लेकिन वहां 8 लोग कामकाज में लगा हुआ है, खेत में लगल है, 8 लोग जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर रहा है। 5 लोग रहता तो भी उतना ही काम करता, लेकिन 8 लोग हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे अपना गपशप दे रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि 3 लोग जो है वहां फालतू काम कर रहे हैं, वहां उनकी जरूरत नहीं है। 5 ही लोग होते और ठीक से काम करते तो हो जाता, लेकिन जबरदस्ती पूरा परिवार जमा हो जाएगा, 8 लोग हैं 10 लोग हैं, सब हो जाएंगे चलिए मिल के करते हैं, गपशप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है, क्योंकि वो उसी जमीन पर काम कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जहां की ऑलरेडी 5 लोग भी काम कर रहे हैं। द वर्क डन बाय दीज 3 वर्कर्स डज नॉट ऑगमेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 वर्कर्स। तो देखिए 5 लोग भी कर सकते थे या 8 लोग हैं, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो भाई जो 5 आदमी मिल के करते उसी को आप 8 आदमी मिल के कर रहे हो, तो क्या फायदा है? तो therefore there is no increase in total production। काम उतना ही हो रहा है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं। आदमी खाली बढ़े हुए हैं, 5 के 8 हो गए हैं, लेकिन काम उतना ही हो रहा है, प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है। There will be no decrease in productivity if the 3 extra workers are taken away because only 5 persons are needed there
and 3 persons are employed in disguised manner. तो यही कहा जा रहा है कि वहाँ जो 8 लोग काम कर रहे हैं उसमें से हम 3 को अगर हटा भी दें तो उनके प्रोडक्टिविटी में कोई असर नहीं आएगा, वो अच्छे से काम कर लेंगे और जितना 8 लोग मिलके कर रहे थे उतना ही 5 लोग भी अकेले काम कर लेंगे। तो अगर हम 3 को हटा भी देते हैं तो काम उसी तेजी से काम होता रहेगा। तो इसका मतलब कि जो 3 लोग थे वो जो है वहां छुपे तौर से एम्प्लॉय किए हुए थे, मतलब उनका कामकाज कुछ नहीं हो रहा था, वो कामकाज कोई खास बढ़ा नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन हाँ वो भी लगे हुए थे कामकाज। तो इसी को कहते हैं कि देवर एम्प्लॉयड इन डिसगाइज्ड मैनर, वो छुपे तरीके से उनको रख लिया गया था काम पर, वो कोई काम उनका बढ़ नहीं रहा था उससे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स जीरो। ये थोड़ा सा टर्म में लिख दिया इकोनॉमिक्स के कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्ट कितना एक्स्ट्रा बढ़ता है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम डेली का मेरा है कि 10 किलो गन्ना को हम क्रश करते हैं, ठीक है, 10 किलो गन्ना क्रश करते हैं तो हमको 5 लीटर या 2 लीटर गन्ने का जूस निकलता है, ठीक है। 10 केजी शुगर केन को हम उसका जूस निकालते हैं, क्रश करते हैं तो 2 लीटर जो है वो जूस निकलता है। अब मान लीजिए उसमें हम 1 केजी और गन्ना डाल देते हैं उसी के साथ, जो 10 केजी हम कर रहे थे क्रश उसी की जगह हम 1 केजी और ऐड कर देते हैं, तो अब उसका हमें कितना एक्स्ट्रा जूस मिलता है। मान लीजिए 10 केजी कर रहे थे तो 2 लीटर मिल रहा था, अब 1 केजी और हमने बढ़ा दिया तो उसकी जगह जो हो गया 2.1 लीटर मिला, तो 2.1 लीटर यानी 0.1 लीटर बढ़ा 1 केजी गन्ना बढ़ाने पर, तो वो उसको कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ गए, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम 1 केजी गन्ना लगाए एक्स्ट्रा तो उससे हमें 0.1 यानी 100 ml जो है एक्स्ट्रा जूस मिला, तो वो 100 ml जूस जो है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाएगा, यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स जीरो, यानी छुपे तौर से जो लोग को काम पर लगा दिया जाता है डिसगाइज तरह से तो उनके लगने से भी मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहता है, यानी कि एक्स्ट्रा कोई भी उसमें आउटपुट हमें नहीं मिलता है। जैसे कोई कहीं खेत है कि परिवार का, वहां 4 लोग खेती कर रहे हैं मिलके, बाप बेटे, एक बाप 3 बेटे हैं अगर, तो चारों मिलके काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। अब उसमें उसके मान लीजिए 4-5 भतीजे आ जाते हैं, कहीं से आ जाते हैं रहने के लिए और कहते हैं कि हम भी काम करेंगे खेत। तो पहले से जो 4 लोग काम कर रहे थे उसकी जगह 3 भतीजे उसके आ जाते हैं कि ठीक है हम लोग भी साथ में काम करें, तो वो तीनों काम करते हैं, तो लेकिन फिर टोटल काम उतनी ही तेजी से हो रहा है जितना पहले हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये आए 3 तो थोड़ा गपशप करना शुरू कर दिए अपने भाइयों से, तो भाई लोग का स्पीड कम हो गया, सब गपशप करेगा, जहां आदमी रहेगा गप करेगा, तो गप करना शुरू कर दिया तो वो लोग भी थोड़ा काम करने लग गए, इधर इन लोग का भी स्पीड थोड़ा कम हो गया, तो कुल मिला के स्पीड उतना ही रह गया काम करने का, यानी एक दिन में जितना काम होता है वो पहले भी उतना ही हो रहा था, और 3 लोग बढ़ गए भाई तो भतीजे उसके, तब भी उतना ही काम हो रहा है दिन भर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 लोग एक्स्ट्रा काम करने आए लेकिन उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, जीरो, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मिला। ऐसा नहीं कि 3 लोग आ गए तो हमारा ज्यादा हमको काम मिल गया, ज्यादा उपज हो गया, ज्यादा फसल लग गया। तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो ये भी जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में होता है, फार्मिंग में होता है कि जहाँ 2 लोग भी होता मिल के कर लेते खेती, अब उसमें ज़बरदस्ती कोई आ गए तो 3-4 लोग और लग गए, भाई चलो हम भी करेंगे साथ में। आपके साथ में करने से कोई बढ़त थोड़े हो रहा है खेती का, जितना पैदा हो रहा था उतना ही पैदा होगा। वो फायदा क्या है, पैदा उतना ही होता था, अब 2 की जगह उसमें जो है 4 लोग उसमें बांटेंगे हिस्सा जो है। ठीक है, ये हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ हमने जो है देख लिया रूरल एरियाज में जो हमने मार्जिनल को हिंदी में क्या कहेंगे? मार्जिनल को हिंदी में, अच्छा 1 मिनट बता रहा। मार्जिनल प्रोडक्ट को नॉर्मल हिंदी में बता रहा। वन मिनट अभिषेक। अच्छा, उसको हम आपको बता देंगे अभिषेक, इसमें जो है ना आपको जो, अच्छा हम बता देंगे, चलिए उसको बाद में देख लेंगे, अभी अपना जो देख। ओके, सो ये हमने जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के 3 टाइप देख लिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने कहा कि इसी को नहीं सॉरी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक हो गया, उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितना लोग काम करने चाहिए उससे ज़्यादा लोग को लगा लेना, तो यानी कि उतना हमें उससे फ़ायदा मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। अगर खेत में 8 लोग काम कर रहे थे तो 8 लोग के हिसाब से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है, 5 ही आदमी के बराबर काम मिल रहा है। 8 आदमी से तो 8 आदमी का ना काम होना चाहिए। एक बात बताइए, आप अगर कुछ काम करा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, आप लेबर को रखते हैं, तो अगर आप 10 लेबर को रखिएगा तो आप क्या सोचिएगा कि 10 लेबर के बराबर काम करेगा। अब पता चल रहा है सब मिलके गप दे रहा है और 3 ही आदमी के बराबर काम कर रहा है, तो आप क्या कहेगा, अरे भाई 10 लोग को रखें, 10 लोग का ना काम के लिए कि 3 आदमी के जैसा काम करो।
तो वो 10 लोग मिलके गप सप करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं, काम आपको 3 ही के बराबर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो जो यहाँ आपको खेती बाड़ी में बताया कि भाई ज़्यादा लोग लग जाते हैं लेकिन गप सप करके वो काम उतना ही कर रहे हैं, टाइम पास, लेकिन लग रहा है देखने से कि काम कर रहा है, तो ऐसे को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो हमने रूरल एरियाज का देख लिया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और डिसगाइज्ड को ही अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखना है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, यानी 5 लोग पहले कर रहे थे, 3 अलग भी जुड़ गए, तो उनके अलग जुड़ने से कितना फायदा हुआ? 0 फायदा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ, उतना ही काम हो रहा है, लेकिन 3 लोग और बढ़ गए बांटने वाले। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉयलिंग वर्किंग हार्ड, या खेतों में काम करने को भी टॉयलिंग कहते हैं, एक उस सेंस में भी। हाँ हाँ खेत में काम करने को भी टॉयलिंग कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, खेतों के कामकाज को ही पहले टॉयलिंग कहते थे, लेकिन अब वो हार्ड वर्क के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खेतों का कामकाज हार्ड होता था, तो हम लोग पहले ये वर्ड यूज करते थे कि ही इज टॉयलिंग इन द फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि पहले कामकाज आदमी खेतों ही में करता था और कहाँ करता था, तो वो टॉयलिंग वर्ड यूज होता था खेतों ही के काम के लिए। लेकिन अब हम लोग उसको, चूंकि खेतों का भी काम है, बहुत तरह का काम है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफिकल्ट वर्क, हार्ड वर्क। अब देखते हैं हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, ऑगमेंट का सिनोनिम होता है बूस्ट, इंक्रीज, इम्प्रूव। ठीक है, सिमिलर वर्ड भी सेम है ना, सिमिलर और सिनोनिम्स एक ही बात है। यस सर। हाँ, नाउ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अब हम शहरी क्षेत्र में किस तरह का बेरोजगारी होता है उसको देखेंगे। फर्स्ट इज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, म्यूट कर लीजिए। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, द सिचुएशन ऑफ एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हैज इमर्ज्ड ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड एराटिक एजुकेटिंग सिस्टम। देखिए कहा जा रहा है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी पढ़ा लिखा बेरोजगार, उसकी बात, तो कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है पढ़े लिखे बेरोजगारी की, ये इसलिए आई है क्योंकि शिक्षा जो सुविधाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा फैला दी गई, यानी कि हर जगह शिक्षा की सुविधा हो गई, पहली बात। दूसरी, एराटिक एजुकेटिंग सिस्टम, यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सही नहीं है, वो गड़बड़, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है। तो एक गड़बड़ शिक्षा व्यवस्था और होने से और शिक्षा हर जगह फैल जाने से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। देखिए पहले क्या होता था, पहले के समय में बेरोजगार वही लोग होते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो कुछ जानते नहीं थे, अनपढ़ होते थे, उनको कोई काम काज नहीं होता था, नहीं मिलता था। पढ़े लिखों को तो खोज खोज के ले जाते थे सब काम पर, सीधे कहते थे कि चलो भाई तुमको नौकरी दे रहे हैं, खाली आप 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो उसको सीधे नौकरी पर रख लिया जाता था, क्योंकि लोग इतने होते ही नहीं थे 10th पास 12th पास। अब क्या है, हर कोई 10th पास है, हर कोई 12th पास है, हर कोई ग्रेजुएट है। पहले बीटेक नहीं मिलते थे, बीटेक मिलता था तो आदमी को लगता था अरे भगवान मिल गया, ठीक है। आज देखिएगा आप, मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं कुछ वर्ल्ड की लीडिंग बुक्स पढ़ता हूँ। देखिए मेरे सामने अभी एक बुक रखी हुई है, ज्योग्राफी की, ये दुनिया में मानी हुई किताब है, उस पर उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है, देखिए क्या, आर नाउल्स, फॉरेन की है, आर नाउल्स MA, ठीक है, आर नाउल्स MA, और उसके साथ एक और राइटर हैं, उनका लिखा हुआ है जे बेरिंग BA, MSc,
और ये वर्ल्ड की नामी किताब में से है, ठीक है। तो देखिए कि जो आदमी बीए है वो अपना डिग्री लिख रहा है कि बीए, सोचिए आजकल बीए को लोग काम भी नहीं देगा, मतलब ऑफिस में बैठने का भी काम नहीं देगा बीए को। और ये जो बीए है कि जिसने दुनिया की एक नामी किताब लिखी और वो अपना डिग्री लिखता है कि बीए, तो बीए का एक समय इज्जत था, बीए का जो है एक समय जो है बहुत इज्जत था। तो उस समय लोग शान से अपने घर के आगे अपना नेम प्लेट पर लिखते थे बीए। आप शहर में यहाँ पटना पुराना मकान कोई देखिएगा ऐसा, तो उस पर लिखा होगा, नेम प्लेट के नीचे लिखा रहता था, जैसे आजकल लोग आईएएस आईपीएस लिखवाते हैं वैसे लिखाया जाता था बीए, घर के आगे नेम प्लेट लगा के कि हाँ यहाँ ये हैं जो बीए हैं। हमने देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, आपको बता रहे हैं बहुत से लोग को, खास करके साउथ में, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा पढ़ते थे। तो कहने का मतलब है कि ये पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या क्यों बढ़ गई, क्योंकि एक तो शिक्षा हर जगह फैल गई, हर जगह से लोग पढ़ लिख के निकलने लग गए हैं, हर जगह स्कूल खुल गए हैं, गांव में जहां आदमी को चलना भी नहीं आता है वहां भी स्कूल है हर तरह का। एंड एरेटिक एजुकेशन सिस्टम, और जो शिक्षा व्यवस्था है जो कि गड़बड़ है, गलत है, सही नहीं है। तो पढ़ा लिखा तो देता है लेकिन ढंग से नहीं पढ़ाता लिखाता है। तो बच्चा कहने को तो पास हो जाता है, 10वां पास हो जाता है, लेकिन उसको आता 5वें के स्तर का भी नहीं, उसकी बुद्धि बिल्कुल मैच्योर नहीं होती है। हम कल ही बता रहे हैं, जगह गए हुए थे, एक रिलेटिव है, बच्चा है, वो उसको उसके टीचर आए हुए थे पढ़ाने के लिए, और उसको पढ़ा रहे थे ये आपके फाइबर्स पढ़ा रहे थे, एनिमल फाइबर्स। तो वही फाइबर्स जो आपको हम पढ़ाए हैं, तो उसको भी पढ़ाया जा रहा था। 7th क्लास का बच्चा है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। तो वो ऐसे उसको बता रहे थे, समझा रहे थे, और वो क्या वो समझ रहा था वो मैं जान रहा था। तो कुछ क्या उसको समझ, कुछ नहीं आज के बच्चे को समझ है 7th क्लास की। और उसको भी वो बता रहे हैं कि एनिमल फाइबर होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, वूल होता है, जो वी वियर वुलन क्लोथ्स, वो भी हाँ हाँ बस कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और कुछ नहीं, बस इतना ही हो गया, वूल हो गया, 2 तरह के एनिमल फाइबर होता है, वूल है ज़्यादा या सिल्क होता है। वूल होता है जो देखिए आप लोग ऊनी कंबल स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो हो गया। सिल्क हो गया जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं या पुरुष भी उसका कुर्ता वगैरह पहनते हैं, और सिल्क हो गया, बस कहानी खत्म हो गई, इतना ही एनिमल फाइबर। तो पढ़ाने, और आप विश्वास करेगा अभिषेक, देखिए आप लोग बहुत कई बच्चे जो है करते हैं, वो टीचर जो आते हैं हफ्ता में सिर्फ 3 दिन पढ़ाने आते हैं, और 7th क्लास बच्चे को, और वो भी पढ़ाते हैं टूटा फूटा इस तरह से। हम तो सोचे, लेकिन हम नहीं बोले कि छोड़िए, कोई भी टीचर है उसको हम क्यों बोले। और वो उसको खुद नहीं वो था कि, और न क्या समझा रहा था बच्चे को, क्या पढ़ा रहा था, खाली टाइम पास। और वो 6,000 रुपये लेता है, 3 दिन सिर्फ आता है हफ्ता में, और दम टाइम पास, मतलब कि जिसको, लेकिन क्या करे आदमी, पता हम कहे कि बताइए इसको क्यों पढ़वा रहा है, 6,000 रुपये ले रहा है। ये हाल है, लोग कहते हैं कि यहाँ ये है। खैर, सर ये कहाँ के है, पटना के है कि कुमरार का बता रहे हैं आपको, कुमरार पटना का बता रहे हैं। और पढ़ाते कुछ नहीं है? कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बता तो रहे हैं बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा बुड़बक है। अरे बच्चा तो अब है बुड़बक है तभी ना उसको, बच्चा तो बुड़बक है ही, हम तो क्या कर रहे हैं, बच्चा तो बुड़बक है ही, तब तो टीचर को रखा जा रहा है। लेकिन टीचर का हम बता रहे हैं कि सोचिए कि हम जान के हैरत रह गए, हम सोचे कि 4-5 दिन कम से कम क्लास लेते होंगे, क्योंकि इससे पहले जो टीचर हम देखे थे वो डेली आते थे, संडे भी शायद आते थे, एक दिन नहीं आते थे। तो नया टीचर बदल के रखा गया। हम बोले भाई क्या हुआ, क्या है, तो कह रहे हैं वही कि देखिए ना सर, 3 दिन खाली आते हैं और पढ़ाते हैं, देखिए ना क्या खाली, वो भी मैथ साइंस खाली पढ़ाते हैं, पहले के टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे, खाली मैथ साइंस वो भी टूटा फूटा पढ़ाते हैं, और 6,000 रुपये लेते हैं, दे रहे हैं, क्या करें मजबूरी। तो ये हाल है, लोग कहते हैं कि फीस, हम क्या फीस लेते हैं, तो क्या कहें, लेकिन ठीक है। बहुत से लोग को लगता है यहाँ पटना कहिए तो फीस है, ये है वो, हम कहते देखिए क्या हाल है टीचर, हम तो कहते हैं बच्चे हम लोग से ज़्यादा, बच्चों प्राइमरी बच्चों का फीस हम लोग से बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, तो क्या, खैर चलिए।
अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे थे, चलिए उसी से ध्यान आ गया सब कि आजकल क्या है कि पढ़ाया लिखाया जा नहीं रहा है, हर जगह स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे सब पास हो जा रहे हैं। हाँ 10वीं पास है, 10वीं पास, तो कहने को तो वो 10वीं पास हैं, कहने को 12वीं या ग्रेजुएट हैं, लेकिन कहाँ ग्रेजुएट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास कीजिएगा, एक मैं लड़के से मिला दिल्ली में, पंजाब से बीटेक किए हुआ था कहीं किसी यूनिवर्सिटी से, ये जलंधर वगैरह से। उसको मैंने पूछा कि तुमने क्या क्या पेपर पढ़ा, ये तो बताओ। उसको एक भी पेपर याद नहीं था कि उसने क्या क्या पढ़ा, क्या पास किया, कौन सा पेपर था उसके सिलेबस। मैंने कहा उसको डिग्री कैसे मिल गई भाई, और कहता है बीटेक है। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता था कि क्या पेपर हमने पढ़ा, क्या था हमारा पेपर। बताइए, बीटेक उसको हो गया है, वहां आईएएस का तैयारी कर रहा है आगे, और क्या पेपर था उसको बीटेक में ये भी नहीं पता। अब क्या, हम तो वही कह रहे हैं कि हम तो ऐसा चीज देखे हुए नहीं किए थे, जानते ही नहीं थे, तो हम तो शॉक्ड हो गए बिल्कुल जब उससे हम पूछे कि भाई वो अपना पहले तो ब्रांच भी नहीं ठीक से बता दिया, ब्रांच एक की, जबकि तेज तरह लड़का था। एक और बात बताएं आपको, बहुत तेज तरह लड़का था, तेज इतना था कि आपको खड़े खड़े बेच देगा वो। ठीक है, तेज इतना था कि दिल्ली में वो कोई भी काम कर सकता था, तो ये नहीं था कि बेवकूफ लड़का था, या होता है कोई कोई कि सीधा लड़का था, बहुत लोग सीधे होते हैं, नहीं उतना होता है, वो अलग बात। बहुत आपके उत्तराखंड का ही था, समझे, उत्तराखंड का ही कहीं का था, हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और पंजाब से कहीं से, जलंधर से शायद किया था। तो मैं ऐसे ही पूछा कि अच्छा, मैंने सुना था लोग कहते थे कि अरे कहते थे मुझे कि सर वो बच्चे ऐसे ही आते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, बीटेक कहने के लिए सब बीटेक रहते हैं, तो मुझे लगा ऐसा नहीं होता होगा, पढ़ाई वगैरह होता होगा। तो मैंने उससे जानने के लिए ही पूछा कि अच्छा भाई बताओ तो कहाँ से बीटेक किया है, तो बोला सर जलंधर वहाँ से किया है। तो अच्छा क्या ब्रांच था, तो सर मैकेनिकल था। तो क्या क्या पढ़े थे वहाँ, क्या, तो उसको कुछ नहीं। हमने कहा अच्छा वो सब छोड़ो, क्या पेपर तुमको था, क्या सब्जेक्ट सब था, वो तो कुछ एक भी याद हो, एक भी पेपर का वो नाम नहीं ले सकता। हम कहे क्या वो पढ़ा, कैसे डिग्री बट रही है, क्या हो रहा है दुनिया में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हाल था, और बहुत तेज तरह लड़का था, ये नहीं लड़का ऐसा नहीं था कि भोदा था या सीधा था या उसको वो नहीं था, जो है लड़का खूब तेज तरह, बोले तो कि वो पूरी तरह से मतलब आज अच्छा कुछ अपना बिजनेस कर रहा होगा, ऐसा बात नहीं है, बहुत तेज था लड़का। तो लेकिन हाँ, पढ़ाई के मामले में जीरो, क्योंकि अब क्या था, वो खुद नहीं पढ़ता था कि कॉलेज में नहीं पढ़ाया था कि क्या हुआ था, या डिग्री खरीदा था, जो किया हो। तो वही हम यहाँ बताया जा रहा है कि एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, कहने को है कि इंडिया में इतने बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक हैं, इतने बेरोजगार हैं। अरे भाई, जो बीटेक को, जो बीटेक का ही नहीं पता है कि बीटेक क्या होता है, तो उसको कहाँ से कोई नौकरी देगा। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए आगे लिखा जा रहा है कि when the educated persons do not get employment, they are called, या this is called educational unemployment। कि जब पढ़े लिखे होने के बावजूद काम नहीं मिलता है, तो इसको हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट या एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वही बात कह दिया, टुडे देयर आर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स विथ मैट्रिक, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इनकेपेबल ऑफ गेटिंग जॉब्स। देखिए कहा जा रहा है कि आज इतने लड़के लड़कियां हैं जो मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिग्री है उनके पास, लेकिन वो कोई काम पाने लायक नहीं है। दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार के कैटेगरी में। इन बिहार द नंबर ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड इज वेरी लार्ज। बिहार में जो है पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए, तो बिहार का ही लिख दिया अपना कहानी, तो आप भी लिख सकते हैं कहीं। बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या
बहुत ज़्यादा है। तो ये था एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। थक गया अभिषेक, आज इतना ही रखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक एजुकेशन नॉर्मल का हो गया। यहाँ पे जो है सीनियर अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में, और फिर ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का बारे में नहीं दिया हुआ है। अरे तो वही ना, देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े नहीं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पहला लाइन क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग उसी को, कोई अलग नहीं है, वही है, उसी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, उसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। कहने का तरीका बस नाम अलग अलग है, ये दो अलग चीजें नहीं है, सिर्फ दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम। हाँ, ये ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं रिकॉर्डेड आपको सब अवेलेबल, तुरंत आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है रिकॉर्डिंग जो है वीडियो, तो उसको अपना करके और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे। सब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आगे आपका इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमी का नॉलेज को आपको बनाने वाला है। तो अभी हर चीज को समझते हुए चलेंगे। हाँ भेज देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक।